میرا نبی ہے میرا نبی۔ ممبر شریف پر تشریف فرما وقار ملکائی ملت اسلامیہ یہی کرتے ہیں تو ہر کسی جانتے نہیں تھا، تب کہا تو سمیم بہت ہمیں پریشان کرتا ہے آج در کروں بالخصوص علم و ادراک کے مہ کامل شعور و آگہی کے بدری منیر بقیت السلف حجت الخلف پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا شاہ سید عبدالرب عرف چاند بابو آستان عالیہ محبوبیہ سبحانیہ بلہری شریف، دیگر سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا علی العالمین جمیعا وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْهَالِكِينَ شَفِيعًا وصلی اللہ تعالی بارک علیہ وعلا کل من ہوا محبوب ومرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العظیم و خطابہ القدیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الرؤوف الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہداد گلگوں قبا امداد کن، قادریم نارے یا غوث اعظم می ظنم دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظنم، یا الہی سر پہ سایہ شاہ بدر الدین کا میرے مرشد حضرت یار علی کے واسطے۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مکی سرکار مدینے کے تاجدار سارے عالم کی مالک و مختار جس کے بارے میں شیخ شادی شیرازی کہیں قسیم جسیم نسیم وسیم کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم امام رسول پیشوائے سبیل امین خدا محبت جبرائیل یتیمے کی ناکردہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت پسست ندانم قدامی سخن گوئے مد کی والا تری سچ من گوئے مد اپنے نبی ساری کائنات کے نبی اللہ کے پیارے نبی وہ نبی جن کا ماتھا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، وہ نبی جن کی نگہ ناز جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، وہ نبی جن کے لبہائے پاک پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، وہ نبی جن کا دہن اقدس وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ نبی جن کی زبان فیض ترجمان وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ نبی جن کی ریاست مبارکہ سیادت عامہ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، اس ریاست و حکومت کے باوجود صبر و رضا کا عالم کل جہاں میت اور جو کی روٹی رضا، وہ نبی جن کا علم غیب پاک اور
بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود. آئیے اسی نبی کی مقدس مداحت بعظمت و پرنور بارگاہ میں پورا مجمع ایک ساتھ اکجٹ ہو کر درود ورد صبح ہے تو لگ رہا ہے مجھے میرے قریب میرا غم شناس بیٹھا ہے. وسیلہ دے کے محمد کا مانگ لے سب کچھ نگاہ نیچی کیے کیوں اداس بیٹھا ہے. پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات آج کا یہ عظیم الشان پروگرام رحمت و نور میں ڈوبی ہوئی عظیم الشان رات جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں. اس پروگرام کا تعلق جشن پنجتن پاک کے نام سے اسے موسوم کیا گیا. فقیر کو اصلاح معاشرہ عنوان منتخب کر کے بھیجا گیا. حضرات گرامی اب یہی سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اولاد غوث اعظم سے آپ تمامی حضرات سماعت فرمائیں گے. انشاءاللہ سرکار چاند بابو کی آمد ہوگی, رحمت و نور کی برسات ہوگی اور آل رسول کی تعظیم و توقیر کو میرے مجدد نے ہمیں اور ہمارے اور آپ کی گھٹی میں پلایا. ارشاد فرماتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے. حضرات کہیں بھی کسی آل رسول کا تذکرہ کرتا ہے اور آل رسول کا خطبہ پڑھتا ہے تو میرے مجدد کے اس شعر کا محتاج ہے کہ فاطمہ خیر النساء کا پیارا کنبہ نور کا, مرتضیٰ کے لاڈلے کا ہر دلارا نور کا, جو امام کربلا ہے وہ بھی ٹکڑا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانا. حضرات اب یہاں سے میری گفتگو کا آغاز شروع ہوتا ہے انشاءاللہ نتیجے کے طور پر نکھر کر تو ہماری گفتگو آپ کے سامنے آئے گی اور یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ الہی حضرت صدیق ساتھی صاحب ایمان پیدا ہو, عمر جیسا عرب جری انسان پیدا ہو, رگے اسلام میں خون حمیت کاش پھر دوڑے, کہیں بارے الہا پھر کوئی عثمان پیدا ہو. سمجھ بیٹھے ہیں ظالم کند ہے مسلم کی شمشیریں, الہی ذوالفقار حیدری کی شان پیدا ہو. غلامان محمد پھر وہی قربانیاں سیکھیں, حسن کے مثل کوئی صلح کن انسان پیدا ہو. غلامان محمد اپنی جانے بیچ دے ہمدم, حسین جیسا کوئی ذبح عظیم الشان پیدا ہو. ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں نوع انسان کے, اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا, وہ ہندی وہ خراسانی وہ افغانی وہ تورانی, اے سرمند شاہل اچھل کر بے قرار ہو جا. وہ قابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. حضرات اگر ہے کیا آپ دیکھیں حضرات گرامی رب کا اعلان ان الدین عند اللہ الاسلام, سب سے بہترین مذہب مذہب اسلام ہے. اسی مذہب کی ترویج و اشاعت کے لیے, اسی مذہب کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے حضرات اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا. سب کا متحد نظر یہی تھا ایک خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے, اپنی نبوت و رسالت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. حضرات سب کا نظریہ یہی تھا, لیکن آقا کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی وسلم اس خاکدان گیتی پر پیغمبر اس دور میں تشریف لا رہے ہیں جب چہار جانب تنگ و تاریک ماحول تھا, بچیوں کو زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ و سلیقہ نہیں تھا, عورتوں کو سماج میں کوئی وقت نہیں تھی, جبر و تشدد کی چکیوں میں پیسا جا رہا تھا, مارکیٹ میں ان کی گولیاں لگائی جا رہی تھی, کسی کا شانہ کسی کے شانے سے ٹکرا جاتا تھا تو بات بات پر تلواریں نکل جایا کرتی تھی. حضرات نہ جانے کتنے خداؤں کو لوگ پوج رہے تھے, یہ لات ہے, منات ہے, عزا ہے, حبل ہے, پیڑ کو دیکھا کہا میرا معبود ہے, گنگا کو دیکھا کہا میرا معبود ہے, گائے کو دیکھا کہا میرا معبود ہے, بچھو بندر پر نگاہ پڑی کہا میرا معبود ہے, انسان چاند کی چاندنی کو دیکھتا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا میرا معبود ہے, رات کی تاریکی کو دیکھ کر اس کے سامنے پوجا ارچنا کرنے لگتا تھا, یہ میرا معبود ہے. حضرات سورج کی شعاعوں
बच्चियों की सिस्कियां, औरतों की आहोफोगा, बीमारों और यतीमों, मजदूरों की ये आवाज जब जवाब इजाबत से टकराई है तो रब तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल्ला के सुल्बे पाक से, हजरत आमना के शिकमे मुकद्दस में मेरे रब ने मेरे महबूब को लिबासे नूर से लिबासे बशरी में तब्दील फरमाया। रजब शरीफ के महीने में मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के शिकमे पाक में तशरीफ ला रहे हैं। हजरात रबीउल अव्वल शरीफ का दिन है, दोशंबे का दिन है, रात जा रही है, सुबह आ रही है। ऐसे माहौल में हादी सुबुल ला रहे हैं, खत्मुर रसूल ला रहे हैं, मौलाए कुल आ रहे हैं, मक्की सरकार आ रहे हैं, मदीने के ताजदार आ रहे हैं। जब कोई हजरत ना बोले तो बरेली से आला हजरत बोले, आया सहने आमिना में महापारा नूर का, गाती है गोराने जन्नत प्यारा नगमा नूर का। अरे कुफुर सारा छट गया, फैला उजाला नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जब मेरे सरकार तशरीफ ला रहे हैं तो 3 कंडीशन मुलाहजा कीजिए। नबी की आमद हो रही है, सर सजदे में है, शहादत की उंगली उठी है, हजरत आमिना बयान करती है। जब हमने कान लगाया तो लम्हाए पाक हिल रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ये सलाह थी, मुस्तफा ने उंगली उठी है, सर सजदे में है, लब से रब्बे हबली की सदा है। आका ने उंगली क्यों उठाई, इसकी वजह क्या है? मेरे पैगंबर आ रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, एक है, अनंत है, विश्वव्यापी है, संसारमय है, सृष्टि का रचयिता है, कुल हुवल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद है व लम यूलद है। तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। मैं जान गया तेरी पहचान यही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। सारे माबूदों की नफी हो गई। पेड़ माबूद है, पत्थर माबूद है, सत्तू झोले में रखे हैं। जब पूजा करनी होती नाक कुछ दुरुस्त करते, ऊंची जगह पे रख देते, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। जब भूख लगती तो उसी सत्तू को खाकर पेट पूजा कर लेते थे। ये दुनिया का दस्तूर था, मगर पैगंबर ने उंगली उठा के बता दिया, एक है, अनंत है, विश्वव्यापी है, संसारमय है, सृष्टि का रचयिता है, कुल हुवल्लाहु अहद है। हजरात जो एक है उसकी इबादत कैसे हो, उसकी रियाजत कैसे हो, उसकी पूजा कैसे हो, उसको कैसे पूछ सकते हैं? सर को सजदे में रख के बता दिया। जो एक है उसकी इबादत कैसे होगी? हजरात जब कान लगाया तो रब्बे हबली की सदा है। जैसे हमने कहा मेरे पैगंबर दुनिया में आए तो रब्बे हबली कहते भी आए। गिरजाघर का एक पादरी खड़ा हो जाएगा और कहेगा, बस कीजिए मौलाना, आपके पैगंबर बोले तो क्या बोले, हमारे ईसा भी बोले हैं। हजरत मरियम की शादी नहीं हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो रही है। हजरत मरियम रब की बारगाह में इल्तिजा करती है, परवरदिगार ये बच्चा लेकर जब हम बस्ती के करीब जाएंगे, बच्ची बस्ती वाले मुझसे पूछेंगे, ए मरियम तेरी शादी नहीं, बच्चा कहां से आया? रब ने इरशाद फरमाया, मरियम बोलने का रोजा रख लेना। बस्ती वाले जब सवाल करेंगे तो बच्चे की तरफ इशारा कर देना। हुआ यूं, हजरत मरियम चली, बस्ती वाले हजरत मरियम के पास आते हैं और अर्ज करते हैं, मरियम तेरी शादी नहीं, बच्चा कहां से आया है? हजरत मरियम खामोश है, बोल नहीं रही है। हजरत मरियम से गांव वाले, मोहल्ले वाले, करिया वाले, बस्ती वाले सवाल करते हैं, ए मरियम ये बच्चा कहां से आया? खामोश है, गोद में बच्चे की तरफ इशारा कर रही है। बस्ती वालों ने पूछा, है बच्चे तू ही बता दे कि तू कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में कहते हैं, कुरान शाहिद है, इन्नी अब्दुल्ला आतानी किताब वजालनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, नबी बन के आया हूँ, किताब लेके आया हूँ। ये कौन बोल रहा है? ईसा रूहुल्लाह अपनी माँ की गोद में बोल रहे हैं। हजरात गिरामी पैगंबर भी बोले हैं, ईसा भी बोले हैं, मगर दोनों के बोलने में फर्क है। अब आइए, रब्बे हबली का फुल फॉर्म क्या होता है? रब्बे हबली का मतलब क्या होता है? ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे। हजरात मेरे पैगंबर ने यही फरमाया, ए अल्लाह मेरी उम्मत को जन्नत दे दे, ए अल्लाह मेरी
حوالے کر دے. عیسیٰ بھی بولے ہیں, مصطفیٰ بھی بولے ہیں, مگر دونوں کے بولنے میں فرق ہے. عیسیٰ بولے ہیں تو اپنی ماں مریم کے لیے, مصطفیٰ بولے ہیں تو ساری امت کے لیے, سارے لوگوں. اب آپ نے فرمایا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اب آئیے حضرات, رب حبلی ہی کیوں کہا؟ سوال یہ اٹھتا ہے, اے میرے سرکار آپ کو آپ اور کوئی جملہ بیان فرما دیتے, رب حبلی ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ یاد کرو مسلمانوں, پیغمبر اسلام نے امت کو کس ڈھنگ سے یاد کیا ہے, اور ابھی پلٹ کر اس کا جواب میں آپ سے طلب کروں گا. میرے پیغمبر نے امت کو یاد کیا. رب حبلی کی صدا میرے پیغمبر نے کیوں دیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ امت بھی آخری ہے, نبی بھی آخری ہے, کتاب بھی آخری ہے. اس امت کے بعد اب کوئی امت نہیں ہے, اس نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے, قرآن کے بعد اب کوئی کتاب نہیں ہے. امت بھی آخری ہے, نبی بھی آخری ہے, کتاب حکمت بھی آخری ہے. مگر روز محشر کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. آدم کی امت وہاں ہوگی, شیش کی امت وہاں ہوگی, زکریا کی امت وہاں ہوگی, یحییٰ کی امت وہاں ہوگی, دانیال کی امت وہاں ہوگی, ابراہیم کی امت وہاں ہوگی, اسماعیل کی امت وہاں ہوگی, اسحاق کی امت وہاں ہوگی, موسیٰ کی امت وہاں ہوگی, یحییٰ کی امت وہاں ہوگی, دانیال کی امت وہاں ہوگی, زکریا کی امت وہاں ہوگی, یوشع کی امت وہاں ہوگی, لوط کی امت وہاں ہوگی, ہود کی امت وہاں ہوگی, جرجیس کی امت وہاں ہوگی. گردے کی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امتیں وہاں ہوگی. یہ گنہگار امت بھی وہی ہوگی. دیکھا جائے گا امت محمدیہ میں اتنے بڑے بڑے چور ہیں, امت محمدیہ میں اتنے بڑے بڑے ڈاکو ہیں, امت محمدیہ میں اتنے بڑے بڑے جہیز کے لٹیرو ہیں, امت محمدیہ میں اتنے بڑے بڑے زانی ہیں, امت محمدیہ میں اتنے بڑے بڑے شرابی ہیں. رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں, اے پروردگار دنیا میں میری امت کا حال کوئی نہیں جانتا ہے. حضرات میرے محبوب کی امت آخری امت ہے. حضرات اس امت کا حال قوم ہود نہیں جانتی ہے, قوم لوط نہیں جانتی ہے, قوم بنی اسرائیل نہیں جانتی ہے. اس امت کا حال کوئی نہیں جانتا ہے, مگر یہ امت سارے امتوں کے حالات کو جانتی ہے. کس کو بندر بنایا گیا امت جانتی ہے, کس پر کون سی عذاب نازل کی گئی امت جانتی ہے, کس پر کون سی پریشانیاں نازل کی گئی امت جانتی ہے. مگر یہ امت بھی روز محشر میں ہوگی, ساری نبیوں کی امتیں وہاں ہوگی. دیکھا جائے گا اتنے بڑے بڑے بدکار امت محمدیہ میں ہیں. رب کے پیارے حبیب کہتے پروردگار میں چاہتا ہوں جیسے دنیا میں میری امت کا حال کوئی نہیں جانتا, ایسے میں چاہ رہا ہوں محشر میں بھی میری امت کا حال کوئی نہ جانے. ساری امت کا حساب تو لے لے, میری امت مجھے دے. اسی جملے پر حیدرآباد کی سرزمین پر سارا مجمع کھڑے ہو کر اس جملے کا استقبال کیا. میرے پیغمبر نے ساری امت, میرے پیغمبر نے اپنے امت کو یاد کیا. مگر آج امت گناہوں کا دروازہ کھول رہی ہے, آج امت بے حیائی کا دروازہ کھول رہی ہے, آج امت نہ جانے کون کون سی خرافات کا دروازہ کھول رہی ہے. جس امت کو میرے سرکار اگر تیز آندھی چلتی تھی تو مسلح بچھا دیتے تھے, اگر تیز بارش ہوتی مسلح بچھا دیتے, رات کی تاریکیوں میرے سرکار اس امت کو یاد کر رہے تھے. مگر آج کی امت کا عالم تو یہ ہے کہ اگر بچے کی شادی ہو جائے, حضرات اللہ اکبر, گھر جانتے ہیں ایک ہفتے سے ناچ نوٹنکی کا اڈا بن جاتا ہے. گھر آپ دیکھیں جہاں پر ناچ اور نوٹنکی ہوتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. یاد رکھیے حضرات, بچے کے دن بننے کا وقت آ چکا ہے, بچے کی لائٹ سینے کا طریقہ مل چکا ہے. جب اس کی شادی ہوتی ہے حضرات گرامی, نکاح ایک عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان, نکاح آدھا ایمان ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت ہے, جو اس سے انحراف کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضرات گرامی اور دھرموں کا مطالعہ کرتے ہیں, کسی کے ہاں حضرات
यहूदी मत का कहना यह है कि अगर तुम अपने खुदा को राजी करना चाहते हो तो शादी मत करो। ईसाइयत का नजरिया यह है कि अगर तुम अपने खुदा को राजी करना चाहते हो तो शादी मत करो। कम्युनिस्ट का नजरिया यह है कि अपने प्रभु को राजी करना चाहते हो तो शादी मत करो। हजरात, हिंदू मत का नजरिया यह है कि अपने राम भगवान को राजी करना चाहते हो तो शादी मत करो। यही वजह है हजरात, आज राहबाना लिबास पहनकर लोग चर्च में पापाए आदम बने घूम रहे हैं। कहीं आप देखेंगे साधु संतों के लिबास में लोग घूम रहे हैं। सबका नजरिया यही है, माबूद को राजी करना है तो शादी मत करो। मगर वाले इस्लाम, तेरी अजमतों को सलाम। इस्लाम कहता है कि अगर तुम्हारा ईमान आधा है, शादी कर लो, पूरा हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है। हजरात गिरामी, जहां से ईमान कंप्लीट होता है, जहां से ईमान को मजबूती मिलती है, जहां से ईमान को पायदारी मिलती है, आज हम नाच गाकर हजरात गिरामी ढोल तमाशे के नाम पर, सटा फटा मटकेबाजी के नाम पर इस इबादत को किस तरीके से किस गड्ढे में हम ले जाकर के डाल रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दिल पर क्या बीत रही होगी जिस उम्मत को मेरे सरकार ने गुनाहों से, जहन्नम से बचाने की, न जाने कितनी कोशिशें की है। हजरात गिरामी, आप देखते चलिए, एक इंसान जा रहा है, सीना ताने अकड़ा जा रहा है। मैंने पलट के पूछा, बात क्या है? आज इस तरह तुम अकड़े क्यों जा रहे हो? कहा, नहीं जानते हो मेरे बच्चे की शादी है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक करे कि आपके बच्चे के दिन बनने का वक्त करीब आ चुका है। हजरात, वही इंसान है जो 1 महीने के बाद सर लटका के आ रहा है। मैंने पूछा, क्या बात है? 1 महीना पहले तो आप अकड़ के जा रहे थे, आज सर झुकाए क्यों जा रहे हो? कहा, मौलाना, जब से अपने बच्चे की शादी मैंने की है, बच्चा मेरे हाथ से निकल चुका है। मैंने कहा, क्या चाहिए? कहा, तावीज दे दीजिए, मेरा बच्चा मेरी बात सुने, मेरा बच्चा मेरी बात सुने, मेरे करीब आए। हजरात गिरामी, मौलाना कहेंगे, क्या बात है? कहा, जिस लड़की से हमने शादी किया था, वो लड़की मेरे बच्चे को पूरी तरीके से किडनैप कर रखा है। हजरात गिरामी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आज तो तुम्हें ऐसी बच्चियां चाहिए जो ज्यादा दौलत लेकर के आए, जो ज्यादा माल लेकर के आए, जो सुपर वाइट के साथ साथ उसके पास वेस्टर्न कल्चर भी हो। कभी आपने सोचा था कौन सी लड़की हमें चाहिए? लड़की ऐसी लेकर के आओ जैसे गौसे पाक की वालदा थी। गौसे पाक की वालदा का आलम यह है कि गौस पाक अपने माँ के शिकम में पाक थे। आप बाहर जब आते हैं, मदरसे में जब पहुंचते हैं, वो उस्ताद ने कहा, पढ़ो बेटे। कहाँ से पढ़ोगे? कहा, कुरान के 19वें पारे से पढ़ेंगे। कहा, 18 पारा कहा तुमने हिफ्ज़ किया है? कहा, माँ के आगोश में रहकर मेरी माँ 18 पारा की हाफिज़ा थी और माँ मुझे कुरान की लोरियां दे रही थी, जिसकी बुनियाद पर कुरान मुझे हिफ्ज़ हो चुका है। वही गौसे पाक की जब पैदाइश हो रही है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हजरत अबू सालेह बयान करते हैं कि जब मेरे बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया था तो नबी तशरीफ लाए, इरशाद फरमाते हैं, या अबा सालेह, आताकल्लाह इब्नन व हुवा वलियुल महबूब महबूबुल्लाह तआला सयकूनु लहू शानुन बैनल औलिया वल तसानी बैनल अंबिया व रसूल। ए अबू सालेह, तुझे एक बेटे की मुबारकबाद पेश कर रहा हूं, वो अल्लाह का वली है। उसकी शान ऐसे होगी जैसे मेरी शान तमाम नबियों रसूलों में है। उसकी शान ऐसे होगी जैसे उसकी शान तमाम औलिया में, अफ्ताब में है। हजरात, जम्मा का इंतखाब, अच्छी लड़की का इंतखाब आप करेंगे तो बेटी कुरान पढ़ने वाली होगी, नमाज पढ़ने वाली होगी तो बेहतरीन अच्छा बच्चा जनेगी। मगर आज सबसे माल वाली चाहिए, डांस पार्टी डांस करने वाली चाहिए, नाचने और कूदने वाली चाहिए। मगर आप बताइए ईमानदारी के साथ, मैंने कहा कि लड़की का एक कारनामा गलत होता तो कोई तावीज देता, कोई नक्श लिख के देता। कहेंगे क्या लड़की का एक कारनामा ठीक है कि जिसने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया, मेरे बच्चे को अपना गुलाम बना लिया? मौलाना अहमद रजा साहब सुनिएगा, हजरात मैं जवाब दूंगा। हाँ सुनो, लड़की का कारनामा ठीक है, दुनिया का वसूल है, दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का तरीका है। जो माल की कीमत अदा कर देता है, माल पर उसी का कब्जा होता है। लड़की के बाप ने जहेज के नाम पर तुम्हारे लड़के को अपनी लड़की के लिए खरीद लिया है। अब उस लड़की पर, उस लड़के पर तुम्हारा हक नहीं है, बल्कि उस लड़की का हक होगा जो जहेज की बुनियाद पर तुमने अपने
बच्चे को बेच दिया था। हज़रात गिरामी, आप चाहते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी खिदमत करे, चाहते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे हर आवाज पर खड़ा रहे, तो शादी ऐसी करो जैसे मौलाए कायनात ने। हज़रत अली मुश्किल कुशा ने किया था, फातह खैबर ने किया था, जनाबे हैदर ने किया था, दामादे पैगंबर ने किया था। हज़रात, लाओ दुनिया में ऐसा कोई दूल्हा मौला अली की तरह आपको दूल्हा नहीं मिलेगा। इसलिए मौला अली की जात तो वो है कि मुसल्ले पर खड़े हो जाएं तो ऐसा नमाजी नहीं, तख्त पर आ जाएं तो ऐसा काजी नहीं, मैदान में आ जाए तो ऐसा काजी नहीं। नमाजी है लाजवाब, काजी है लाजवाब, काजी है लाजवाब। हज़रात गिरामी, लाओ ऐसा दूल्हा हज़रत मौलाए कायनात की तरह, लाओ ऐसी दुल्हन जिसके आंचल के बारे में हज़रात मेरे इमाम ने कहा था, तैयबा ताहिरा सैयदा ज़ाहिदा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हज़रात गिरामी, लेकिन सुनिए हज़रात, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हज़रत अली की शादी हो रही है, मगर आप बताइए मेरे सरकार तो सारी कौनैन की चाबी तो उनके हाथ में है, सारी चीजें के मालिक अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को बना दिया है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी की है। तो हज़रात बताओ, कोई बात है? आप ईमानदारी के साथ बताइए, आज तुम्हारे दरवाजे पर कोई नाचने और गाने वाला थिरक थिरक कर नाचे और कूदे, तो बताओ तुम्हारे दरवाजे पर लुंगाड़ों की टीम जमा होगी कि नहीं? तुम्हारे दरवाजे पर लफंडुओं की टीम जमा होगी कि नहीं? उनकी निगाह किसके रोशनदान पर पड़ेगी? उनकी निगाह किसकी खिड़कियों पर पड़ेगी? उनकी निगाह किसकी बहन बेटियों को देखेगी? मेरे नबी साफ फरमाते हैं, ऐसे मर्द को आका ने तय्यूस बयान किया है। अब तय्यूस किसे कहते हैं? अगर आपकी जमीन को झटका न लगे तो बता दो, तय्यूस उसे कहते हैं जिसको बेगैरत कहा जाता है। इंसान के आंख से पानी जब गिर जाता है तो उसे बेगैरत कहा जाता है। हज़रात गिरामी, आप देखते चलिए, हज़रात मेरे सरकार अपनी बच्ची का निकाह कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ कोई बेटा पढ़ा लिखा मिल जाए तो उसे कम से कम 4 व्हीलर चाहिए, और डिग्री मिल जाए तो उसे कम से कम घर भी चाहिए। उसके पढ़ाई का खर्चा लड़की वाला दे, उसके लिखाई का खर्चा लड़की वाला दे, घर भी तुम्हारा सजा कर लड़की वाला दे। ये दुनिया का तरीका बन चुका है। हज़रात, आप गौर से मेरी बात को सुनिएगा, समाज में इस तरह तूफान मचा हुआ है, जहेज के नाम पर, शादी के नाम पर इस तरह लुटाई डकैती मार हो रहा है कि हज़रात गिरामी, आप देखें लड़की के बाप सब कुछ जिम्मेदारी के साथ सजा रहा है, पूरा कर रहा है। आपका लड़का कितना पढ़ा लिखा है? मुसलमानों के कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत का दौरा मैं कर रहा हूँ। बताइए मुसलमानों के कितने बच्चे WBCS हैं? बताइए मुसलमानों के कितने बच्चे ICS BCS हैं? बताइए मुसलमानों के कितने बच्चे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं? बताइए मुसलमानों के कितने बच्चे लॉयर और MDs हैं? हज़रात, आपको मिलेंगे 2 से 2.5%, मगर उस 2 से 2.5% में आधा ईसाई, आधा शिया के बच्चे मिलेंगे, और आधा देवबंदियों के बच्चे मिलेंगे, और कुछ जमात इस्लामी के बच्चे मिलेंगे। मगर आपके पास ये कर रहा है कि हमारे पास तालीम है, हमारे पास हुनर है, हमारे पास लियाकत है। बताओ, मौलाए कायनात से ज्यादा पढ़ा लिखा तुम्हारा लड़का है। तुम्हारे बच्चे को दुनियादार समझ देगा, तुम्हारे बच्चे को दुनिया की कॉलेज यूनिवर्सिटियां समझ देंगी और मार्कशीट देंगी, मगर अली को दुनियादार नहीं, मदीने का ताजदार समझ दे रहा है। इरशाद फरमाते हैं, मदीनतुल इल्म अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, मेरा अली उसका दरवाजा है। हिकमा अलीयुल बाबुहा, मैं हिकमतों का शहर हूँ, मेरा अली उसका दरवाजा है। बताओ क्या किया था मौलाए कायनात ने? हज़रात, हज़रत फातिमा से निकाह करने के बाद हज़रत फातिमा अपने घर का काम काज करती है, रस्सी खींचती है। अरब शरीफ का कुआं देखिए, कितना गहरा कुआं होता है, उस पर खुरदरा रस्सी खींचती है, पानी निकाल निकाल कर लाती है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दिन हज़रत फातिमा के घर मौलाए कायनात तशरीफ लाए। हज़रत फातिमा ने हाथ को पीछे छुपा लिया है। हज़रात, हाथ को पीछे कर लेती है। इतने में मौलाए कायनात फरमाते हैं, फातिमा क्या हुआ? हज़रत फातिमा भी हाथ आगे ही करने वाली थी कि खून का कतरा जमीन पर गिर गया। हज़रत फातिमा से हज़रत अली पूछते हैं, ए फातिमा, ये खून कैसे गिर रहा है? हज़रत फातिमा ने अपने कटे हुए हाथ को मौला अली के सामने पेश कर दिया। जब मौला अली के सामने पेश किया, पूछा, ए फातिमा, ये हाथ कैसे कट गया? तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा, इंशाअल्लाह ईमान की खेती हरी हो जाएगी। हज़रात, हज़रत
फातिमा से अली पूछते हैं, फातिमा ये हाथ कैसे कट गया? कहा रस्सी खींचते खींचते मेरे शौहर चक्की चलाते चलाते हाथ कट चुके हैं। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, ए फातिमा क्या करूं, इससे बचने का कोई सामान तो नहीं है मेरे पास। चले जाओ बानी इस्लाम की बारगाह में, सरकार की बारगाह में चंद बादियां आई हम मांग लाओ। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने कटे फटे हाथ को छुपा लेती हैं। हजरात अब जाने के लिए तैयार है, मगर कब जाती है? रात की तारीकी का इंतजार कर रही है। मेरी माँ बहनों, बगैर शौहर के और ससुराल के बगैर इजाजत के तुम अपने घर भाग जाती हो, चली जाती हो। मेरी बात को गौर से सुनना, हजरत फातिमा चल रही है, रात की तारीकी का इंतजार कर रही है। हजरत फातिमा का घर कितना दूर था मेरे मुस्तफा के घर से? हजरात हज करने वाले जानते हैं, जो मेरे सरकार का रोजा है वही हुजरे आयशा है। उसके बगल वाला कमरा हजरत फातिमा का घर था। उसके बगल में बाबे जिब्रील है, उसके बगल में असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है। हजरत फातिमा अपना कदम निकालेगी तो पहला कदम मस्जिद नबवी शरीफ का सहन होगा, दूसरा कदम मेरे मुस्तफा का घर होगा। रात की तारीकी का इंतजार कर रही है कि रात की तारीकी आ जाए। हजरात क्यों रात की तारीकी का इंतजार कर रही है? हजरात जब से आयत पर्दा का नुज़ूल हुआ है, कोई पर्दे से पर्दा वाला क्यों ना हो, मगर दो की निगाह से नहीं छुप सकता है। अल्लामा अहमद अली साहब, दो की निगाह से नहीं छुप सकता। एक तो दिन में सूरज की निगाह से, एक तो रात में चांद की निगाह से। मगर आयत पर्दा का जब से नुज़ूल हुआ है, हजरत फातिमा को न दिन के सूरज ने देखा है, न रात के चांद ने देखा है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा मुजद्दिद कह रहा है, जिसकी आंचल न देखा महो महर ने, जिसकी आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत बिला, उस रिदाए नज़ाहत बिला को सलाम। फातिमा को न दिन के सूरज ने देखा, न रात के चांद ने देखा। अब कैसे माहौल में पर्दा कर रही है? जब निगाह पाक है, गलियां पाक है, लोगों के पास तमद्दुन है, तहजीब है, सकाफत है, तब वो पर्दे का एहतमाम कर रही है। आज न गलियां पाक है, न निगाहें पाक है, न इलाके पाक है, न मोहल्ले पाक है, निगाह में तकद्दुस नहीं, मोहब्बत नहीं, अखलाक नहीं, और उस पर ये बेहुरमती, ये शराब बेपर्दगी, इस तरह गंदा माहौल, इस तरह उरियानियत का हजरात गिरामी, जब निगाहें पाक थी तो पर्दे का एहतराम। और जब मेरे फातिमा ने पर्दा किया है तो सुन लीजिए, आगे एक कदम और बढ़ के मैं आपको समझा दूं। जब पर्दा आपने किया तो इस तरह पर्दा किया है, रोज़े महशर का दिन होगा, राजाओं की राजकुमारियां घसीटती हुई आएंगी, सुल्तानों की बीवियां रगड़ती हुई आएंगी, बड़े बड़े बादशाहों की कनीज़ाएं घसीटती हुई, कोई मुंह के बल आएगा, कोई सर के बल आएगा, कोई पैर के बल आएगा। मगर फातिमा जब आने वाली होंगी तो पैदल नहीं आएंगी, रसूलुल्लाह की ऊँटनी पर बैठ कर आएंगी, और अकेले नहीं आएंगी। हज़रात 70,000 बादियां आपके साथ होंगी। और यही तक बात नहीं है, रब इरशाद फरमाएगा, चलो निगाह नीची कर लो, फातिमा बिन्ते रसूल गुजरने वाली है। हज़रात अब कैसे गुजरेंगी? जिस तरह बिजली चमक जाए, बिजली किसी की निगाह नहीं जम सकती है। हज़रत फातिमा जब गुजरेंगी तो आवाज आएगी, अपनी निगाहों को नीची कर लो, फातिमा बिन्ते रसूल गुजरने वाली है, फातिमा बिन्ते रसूल गुजरने वाली है। और आगे बढ़ के कह देता हूं, यही बात नहीं है, हज़रत फातिमा ने हज़रत अली से कहा था, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को रात की तारीकी में निकालना। और आगे बढ़ के कह देता हूं, हज़रत फातिमा ने कहा था, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे इंतकाल की खबर आम मत करना, सिर्फ रिश्तेदारों ही तक मेरी बात को, मेरे इंतकाल की खबर पहुंचा देना। जब पर्दे का एहतमाम हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किया, आज अगर तुम इज्जत चाहते हो तो पर्दे के हिसार में महसूर हो जाओ। आज अपनी बच्चियों की, अमन की खैरात चाहते हो तो पर्दे के हिसार में आ जाओ। हज़रात गिरामी, लेकिन आज बेपर्दगी का बाजार गर्म है। हज़रत फातिमा चल रही है, रात की तारीकी में रसूलुल्लाह के घर पहुंच रही है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सिर्फ नबी ही नहीं पूरी नबूवत खड़ी हो गई, नबूवत ही नहीं सारी खुदाई खड़ी हो गई। मेरे सरकार ने पेशानी फातिमा का बोसा दिया है। हज़रत फातिमा ने नबी के दस्ते मुक़द्दस को बोसा दिया। अब आका फरमाते बेटी किस लिए आई हो? ये जुमला गौर तलब है, बेटी किस लिए आई हो? अब रिश्तेदारी की जुबान में सुनिए हजरात, जब तक लोग ईमान नहीं लाए थे मेरे सरकार को रिश्तेदारी की जुबान में बुलाते थे, लेकिन ईमान लाने के बाद मेरे सरकार को रिश्ते की जुबान में कोई नहीं बुला रहा है। कोई बुलाता है तो कहता है या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इस तरह लोग बुलाते हैं। मगर हजरात, हजरत फातिमा, तकरीब फहम के लिए कहना चाहता हूँ कि हजरत फातिमा जब गई है तो किसने किसको किसके पास भेजा? शौहर ने बीवी को ससुराल में बांदी मांगने के लिए भेजा था। अल्लाह के नबी से बारगाह में हजरत फातिमा अर्ज करती है, सरकार ये हाथ कर चुके हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कैसे कहा, रस्सी खींचते खींचते हाथ कर चुके हैं। आज हमारे और आपकी बच्चियां हो, शौहर अगर उसे तकलीफ देता है तो हम लड़ाई करने पर तैयार हो जाते हैं, बात तलाक तक पहुंच जाती है। मगर मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, फातिमा चाहती क्या हो? अर्ज करती है, सरकार आप बांदी बांट रहे हैं, सरकार एक बांदी मुझे अता फरमा दे। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए फातिमा तुम्हें बांदी न मिलेगी, तुम्हें बांदी नहीं मिलेगी, बांदी से बेहतरीन चीज मैं तुमको अता कर देता हूँ। कहा क्या? कहा हर फर्ज नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लेना, ये बांदी से बेहतर है। हज़रत फातिमा लौट रही थी, ज़माना चीख रहा था, या रसूल अल्लाह, आपका घर तो उधर है, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नाना, यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। या रसूल अल्लाह, एक बांदी दे देते तो क्या हो जाता? मेरे पैगंबर, एक बांदी दे देते तो क्या हो जाता? तो क्या होता सुनिएगा, अगर मेरे मुस्तफा एक बांदी दे देते तो मामला क्या होता? आज दामादों को ससुराल से मांगने का दरवाजा खुल जाता, जिस दरवाजे को मेरे मुस्तफा ने हमेशा हमेशा के लिए बंद किया था। आज जो समाज उस दरवाजे को खोल रही है, आज की सोसाइटी उस दरवाजे को खोल रही है। अरे नादान, किसके चौखट से मांग रहा है? ससुराल में 50 मांगेगा तो कहेंगे 25 से काम चला लो, 25 मांगेगा तो कहेंगे 10 से काम चला लो। ए नादान सुन, मैं तुझे जगह बताता हूँ कि मांग, मगर मांगने का तरीका सीख ले। मांगना कोई जुर्म नहीं है, मगर ससुराल से मत मांग, मदीने के ताजदार से मांग ले। आप कहाँ मांगे? आला हज़रत की बारगाह में चले, आला हज़रत की रूहानी सदा सुनाई दे रही है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुनिया बहा दिए हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझ में आ रही है? तो अगर समझ में आ रही है तो कोई नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले पाक जिंदाबाद, महफिले पाक जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अपने बाजू पर भरोसा रखो, रब तबारक व तआला तुम्हें अता फरमाने वाला है इंशाअल्लाह। परवरदिगार आलम कभी तुम्हें मुहताज नहीं फरमाएगा। ऐ नौजवान, तू ससुराल के दर पर नहीं बिकना है, तुम मदीने वाले की बारगाह में बिक जा। जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। हज़रात गिरामी, आप देखते चलिए, ये समाज का माहौल ये है। आए दिन सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबरें छपती हैं, फला मोहल्ले में फला लड़की भाग गई है, फला मोहल्ले में लड़की मुर्तद हो चुकी है, फला मोहल्ले में लोग दुनिया को भाग गई है, फला को लेकर के गई है। हज़रात, इसका जिम्मेदार ये बदनाम जमाना है, इसका जिम्मेदार ये समाज है, इसका जिम्मेदार ये लोग हैं जो आज जहेज की बुनियाद पर शादी को इतना सकील बना दिया है, शादी को इतना डिफिकल्ट बना दिया है, शादी को इतना
मुश्किल बना दिया है। आज बूढ़े इंसान के पास वो दौलत नहीं है कि जो अपनी बच्ची की शादी कर सके। किसी गरीब इंसान के पास अभी आदि करीब में कलकत्ता की सरजमीन पर तकरीर करने गया, वहां मैंने देखा 55 साल लड़की आज भी बैठी हुई है, 50 साल लड़कियां आज भी बैठी है कि उसके बाप के पास इतनी दौलत नहीं है जो अपनी बच्ची के हाथ को लाल पीला कर सके। जब तुम्हारी दुकानें बिकेंगी तब आंख खुलेगी, जब तुम्हारी प्रॉपर्टियां बिकेंगी तब आंख खुलेगी, जब तुम्हारे घर के लिए रखे जाएंगे तब आंख खुलेगी। शादी के नाम पर मेरे पैगंबर ने शादी को कितना सरल और कितना आसान फरमाया था। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी पढ़ कर बताना चाहता हूं, सुनिए। फानी बदायूनी ने अपनी बच्ची की शादी किया था और शादी करने के बाद फानी बदायूनी ने अपनी बेटी के कान में कहा था, ऐ मेरी बेटी मेरे दरवाजे पे मत आना। कहा किस लिए? हजरात बाप ने कहा, बेटी मेरे पास एक घर था, जहेज के नाम पर हमने बेच दिया। मेरे पास एक जमीन थोड़ी सी थी, हमने जहेज के नाम पर बेच दिया है। ऐ मेरी बेटी अब मेरे पास कोई जमीन नहीं है जो मैं अपना सर छुपा सकूंगा, कहीं दौड़ धूप कर इधर उधर अपनी जिंदगी बसर कर लूंगा। मेरी बेटी मेरे घर मत आना। हजरात फानी बदायूं ने अपनी बेटी की शादी कर दिया। चंद दिन के बाद एक रुका तहरीर आता है कि तुम्हारी बेटी को ससुराल वालों ने जहेज के नाम पर जलाकर मार डाला। फानी बदायूं ने अपनी रोती हुई आंख लेकर अपनी बेटी के कब्र पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद यही शेर कहा था, आया नाराज आया में जा, इस नामुरादी में कफन देना भूले थे हम सामाने शादी में। ऐ मेरी बेटी काश तेरा बाप तुझे कफन भी अदा कर देता तो ससुराल का कफन पहन के नहीं जाती, तो अपने बाप का दिया हुआ कफन पहन के दुनिया से चली जाती। ये समाज का माहौल है, ये समाज है। हजरात ये गुनाहों का, इस जुर्म का जो जिम्मेदार है वो आज का समाज है। इन सारे खुराफात को हमें समाज से निकाल कर फेंकने की जरूरत है। जब तक इन खुराफात को समाज से निकाल कर फेंका नहीं जाएगा, हमारे माहौल में अमन नहीं बर्पा हो सकता है, हमारे यहाँ अमन नहीं बर्पा हो सकता है। शादी के नाम पर क्या कुछ नहीं किया जाता है। शादी के नाम पर याद रखो मेरे दोस्तों, राजी करना है तुम्हें खुदा को, राजी करना है तुम्हें रसूलुल्लाह को। फुफ्फा अलग नाराज फिर रहे हैं, खालू अलग नाराज फिर रहे हैं। जहाँ कोई शादी है, अगर ढोल धुक्कर ना बजे, नाच नौटंकी ना हो, आतिशबाजी और तमाशा ना हो, तो लोग न जाने क्या क्या बकने लगते हैं। याद रखो रिश्तेदार नाराज होता है तो नाराज होने दो, रसूलुल्लाह को नाराज मत करना। हमारे परिवार नाराज होने दो। रसूल करीम के दामन मोहब्बत से तुमने जो वादा किया था कलमा पढ़ करके उस पर दाग मत आने दीजिएगा। हजरात शादी को मेरे पैगंबर ने बहुत आसान किया था, शादी को मेरे पैगंबर ने बहुत आसान किया। पलट कर आगे चलता हूँ, आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी किया है, मगर औरत का मकाम क्या है? औरत का मकाम हजरात यहूदियों के यहाँ औरत पैर की जूती का नाम है, ईसाइयों के यहाँ औरत सर के ताज का नाम है। यहूदी का कहना यह है कि औरत पैर की जूती है, ईसाइयों का कहना यह है कि औरत सर का ताज है। मगर ए इस्लाम तू बता तेरे अंदर औरतों का क्या मकाम है? इस्लाम नजरिया पेश कर रहा है, इस्लाम तरीका पेश कर रहा है। औरत भाई बोल के नहीं हो रहे, मैं जबरदस्ती मुसल्लत होना नहीं चाहता, आप लोग समझ रहे हैं? झूम करके एक बार हाथ उठाइए, सब लोग सुनना चाहते हैं तो सुनिए। औरत का मकाम यहूदियों के हाथ पैर की जूती है, औरत का मकाम ईसाइयों के हाथ सर का ताज है। मगर इस्लाम तेरे औरत का क्या मकाम है? औरत का मकाम न तो पैर की जूती इस्लाम ने कहा, न सर का ताज इस्लाम ने कहा। इस्लाम कल्ब के सुरूर का नाम है, मोहब्बत का नाम है, प्यार का नाम है, अखलाक का नाम है। क्यों कहा? सुनिए हजरात, बाएं पिछली से औरत को क्यों पैदा किया? हजरात दाहिना रखी बात हमें पसंद है, दाहिने पिछली से पैदा कर देता, बाएं पिछली से औरत को क्यों पैदा किया जा रहा है? हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को हजरत आदम की बाएं पिछली से पैदा किया गया। इसकी वजह यह है कि सीने में जो धड़कता हुआ दिल है इंसान के दाहिनी तरफ नहीं है, इंसान के बाईं तरफ है। इस्लाम ने मसाले को हल कर दिया कि औरत ना तो पैर की जूती है, औरत ना तो सर का ताज है, औरत दिल के ताज
है, प्यार का ताज है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा। हजरात और देखते चलिए आप, औरत की शादी, लड़के की शादी हुई, घर में बीवी जब आती है तो सुनिएगा, उन नौजवानों के तरफ को जहजहन को मुल्तफित चाहता हूं कि आज जो शादी करने के बाद तुम अपने माँ बाप को भूल जाते हो, शादी करने के बाद तुम अपने बाप की ताजीम करना भूल जाते, अपने माँ की ताजीम करना तुम भूल जाते हो। याद रखना हजरात, माँ का मर्तबा क्या है, मकाम क्या है, सुनिएगा, माँ का दर्जा और मकाम क्या है, माँ की हैसियत क्या है। हजरात गिरामी, इस औरत में इतना पावर मेरे पैगंबर ने रखा है, ये बच्ची है तो आका फरमाते हैं कि जिसने 3 लड़कियों का निकाह पढ़ा लिखा करके मज़हबी रिश्ते में उसका रिश्ता कर दिया है, नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरी शफाअत उसे तलाश करेगी। 2 बच्ची वाले सहाबी आए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जिसके पास 2 बेटियां हो, आका का क्या हुक्म है? नबी कहते दरियाए करम जोश में है, आका इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरी शफाअत उसे भी तलाश करेगी। 1 बच्ची वाले सहाबी आए, अर्ज करते हैं सरकार, जिसके पास 1 ही बेटी हो उसके लिए नबी का क्या फरमान है? नबी फरमाते हैं मेरी शफाअत उसे भी तलाश करेगी। न बेटी है न बेटा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में आती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, जिसके पास न बेटी है न बेटा उसके लिए नबी का क्या फरमान है? आका का दरियाए करम जोश में है, नबी शाह फरमाते हैं जिसका कोई नहीं उसका मैं मोहम्मद हूँ। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं क्या हिदो कब्ला शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनह परहेज़गारी वाह वाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इमदाद दिया, वही बच्ची है। अगर वो लड़की शादी करके शौहर के घर जाती है, नबी इरशाद फरमाते हैं मियाँ बीवी अगर एक दूसरे से मोहब्बत से प्यार से बात कर लेते हैं और मोहब्बत से अपने शौहर को देख लेती है तो जगह हटने से पहले अल्लाह उनके गुनाहों को बख्श देता है, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद कर देता है। और वही बच्ची अब बीवी थी तो शौहर के लिए बख्शिश का रास्ता, अब वही बच्ची माँ बन गई है। तो मेरे नबी का एजाज सुनिए, नबी फरमाते हैं और महातो तहता खुदा मिनाफिल जन्ना, माओ के कदमों के नीचे जन्नत को समेट दिया। हजरात आप देखते चलिए, आलिम को देखने के बाद हज मबरूर का सवाब नहीं कहा गया, पीर को देखने के बाद हज मबरूर का सवाब नहीं कहा गया, बड़े से बड़े मुफ्ती को देखने के बाद हज मबरूर का सवाब नहीं कहा गया। हज मबरूर का सवाब कहाँ मिलता है? जो अपनी माँ को मोहब्बत की निगाह से देख लेता है उसे हज मबरूर का सवाब मिलता है। 1 बार 2 बार 10 बार, अरे 100 बार देखेगा तो 100 हज मबरूर का सवाब मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुस्तफा जाने रहमत की हदीस बोल रही है हजरात। और यही तक बात नहीं है, वही औरत है, बच्ची थी तो माँ बाप के लिए, शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए बख्शिश का रास्ता हमवार कर रही है। नबी की दुआ, तवज्जो चाहूंगा, नबी की दुआ उम्मत के हक में जैसे कबूल होती है ऐसे ही माँ बाप की दुआ अपने औलाद के हक में कबूल होती है। माँ बाप से दुआएं लेते रहो, माँ बाप, अरे दुआओं का भंडार तो तेरे घर में है, दुआओं का खजाना तो तेरे घर में है। जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तुमने वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। हजरात दुआओं का संगम तो तुम्हारे घर में है। कभी तौफीक हुई होगी माँ का कदम चूम लो, कभी तौफीक हुई होगी बाप की दस्तबोसी करो, कभी तौफीक हुई होगी माँ की परेशानी चूमो। अरे माँ एक ऐसा नाम है, ऐसा नाम है कि बेटा गाली भी देता है तो माँ उसे दुआ देती है, बेटा जुर्म करता है तो माँ अपने साए रहमत में उसे छुपा लेती है और उसके लिए दुआएं करती रहती है। ये माँ का ममता है, ये बाप का प्यार है। हजरात एक शख्स ने, अब एक इंसान था, इस वाक़े को सुना के मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। एक शख्स था अपने बेटे के कंधे पे हाथ रख के पूछता है, बेटा ये बताओ दुनिया में सबसे कामयाब इंसान कौन है? कहा वालिद गिरामी मुझसे ज्यादा कामयाब इंसान दुनिया में कोई नहीं है। थोड़ी देर के बाद
कंधे से हाथ को हटा लिया, पूछा है बेटे आप बताओ दुनिया में सबसे कामयाब इंसान कौन है? बेटा कहता वालिद साहब मैं नहीं जानता हूं कि दुनिया में सबसे कामयाब इंसान कौन है। बाप ने कहा भी कुछ ही देर पहले तुमने कहा कि दुनिया में सबसे कामयाब इंसान मैं हूं और आप अभी पलट के कहते हो मुझे मालूम नहीं। तो बाप से बेटे ने कहा ए मेरे वालिद जब तक आपका हाथ मेरे कंधे पे था दुनिया में मुझसे ज्यादा कामयाब कोई नहीं था। ए वालिद गिरामी आपने अपना हाथ मेरे कंधे से हटा लिया है, अब मुझे पता नहीं है। तो ऐ लोगों आ जाओ और अपने मुआशरे में एक बेहतरीन मुआशरा बनाओ, अपने माहौल को इस्लामी माहौल में ढालने की कोशिश करो। माँ को गालियां देने वालों, माँ को गालियां देने वालों याद रखो अगर तुमने अपनी आकबत को देख लिया है तो बढ़ जाओ, कदमों पे गिर जाओ माँ के और आज ही तलाशी कर लो। इंशाअल्लाह मेरी माँ आपकी माँ तो ऐसी है कि सब मेरी माँ आपकी माँ ऐसी है कि बेटा लाख जुर्म कर ले एक बार पलट के उसके कदमों में आ तो जाए, इंशाअल्लाह उसके बड़े से बड़े क्राइम और जराइम को और जुर्म को माँ इतना दामन इतना वसी है उसे माफ करती हुई नजर आएगी। मगर आप बताओ बीवी के लिए तो न जाने कौन कौन सी टॉनिक को प्रोटीन तुम लाते हो, कभी माँ के लिए चमनप्राश का डिब्बा लेकर के आए, बीवी को न जाने कितने कितने मेवाजात ड्राई फ्रूट्स खिलाते हो, क्या कभी माँ के लिए तुमने एक पाव दूध का बंदोबस्त किया है? क्या तुमने कभी एक अंडे का बंदोबस्त किया है? सोचो तुम्हारे पास बरकतें कहाँ आएंगी जब बरकत की दुआ करने वाली तुम्हारी माँ तुम्हारे घर में घुट घुट के मरेगी, रो रो के सोएगी, एक एक लुकमा रो रो के खाएगी। तो बताओ तेरे घर में बरकत आएगी, तेरे कंधे में तिजारत में कुशादगी आएगी, कल्लाश हो जाएगा, मुफलिस हो जाएगा। अरे चाहता है मुफलिसी और कल्लाशी दूर हो जाए तो माँ बाप से मोहब्बत करो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। जाते जाते अताउर रहमान कादरी कौम के नौजवानों को पैगाम देगा, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह कहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हम फौजे मोहम्मद के सिपाही है, सिपाही देता है जहां हमारी शुजाअत की गवाही। हम रूहे बेलाली है कभी फक्र गदाली, हम शाने जलाली है कभी नादे जमाली, मुट्ठी में हमारे गर्दिशे अफलाको जमी है। अरे यार की कसरत का हमें खौफ नहीं है, ये महफिले रो जिंदाबाद, मुसलमाना ने सुन्नत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह। अगर आप हजरात अपने शहर के जलसे या इस्लामिक प्रोग्राम की वीडियो रिकॉर्ड करवाना और YouTube पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो हमसे राब्ता करें। मोबाइल नंबर 73 17 21 13 01। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।